सही होनी बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत लोगों की मेहनत गई है। जिस तरह से इस फिल्म को शूट किया, जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत ही सेंसेशनलिस्ट फिल्म बन सकती थी, जो नहीं है, ना हमारी नीयत थी। तो इसमें हमारे जो टेक्निकल क्रू हैं, मेरे जो कैमरामैन हैं पंकज कुमार, मेरे प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स हैं सुब्रता रे और सुब्रता चक्रवर्ती और अमित रे, और मेरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर अभिलाषा शर्मा, इनकी सेंसिबिलिटीज़ मेरे साथ बिल्कुल ही स्ट्रीमलाइन थी। हम सब की सेंसिबिलिटी यही थी कि हमें एक सच्ची और एक सही फिल्म बनानी है, और वो जो मेहनत है सबकी वो नज़र आती है इस फिल्म में, विच इज़ वाई इट पुट्स यू इन अ रियल स्पेस। कभी कभी ऐसा, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल हु सीन द फिल्म सो फार हैव टोल्ड मी कि कभी कभी उनको लगता है वो फिल्म नहीं देख रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली समथिंग दैट्स प्लेइंग आउट इन फ्रंट ऑफ देम। जी जी, आई थिंक हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि देर इज़ इनफ ऑडियंस फॉर 2 फिल्म्स, एंड जो पहले सिंगल्स ब्लिंक देखेगा वो अगले दिन तलवार देखेगा, एंड वाइस वर्सा। या जंगली पिक्चर्स I have actually been focusing completely on the creative part, so this, I think the producers would be a better people to answer. जी जी। जी जी जी। आयरॉनिकल तो ज़रूर है, लेकिन इस चीज़ में सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया को मिलना चाहिए कि एज अ मीडिया हाउस उन्होंने इस तरह का सब्जेक्ट अप्रूव किया, उसको अनकंडीशनली बैक किया। और अगर आप रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पूछें तो मुझे सिर्फ एक कंडीशन दी गई थी, टू मेक अ गुड फिल्म। उसके अलावा देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन मी एट ऑल। जी 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 जी। No, actually Vishal ji and I have been very closely associated on a personal level, and so over casual discussions of what to do next, because enough time had passed and my son was now old enough for his mother to go out to work again. In the course of those casual discussions, several ideas were being thrown, you know, we would brainstorm, and out of that this was a subject which came up, which I found very, very intriguing, because like all of us, I have also followed the case since the time it broke. He was like a support to me on this, because for me the subject and the zone or genre of filmmaking is completely out of my comfort zone, which is why I left it to him to write it, because I mean he's a very, very accomplished writer, and what he does with his characters and with his screenplay, I don't think I would have been able to do, especially in a genre like this. It was fortunate for me that he had made the time. In fact, he took it upon himself कि मैं shooting पे, he was working on Heather at the same time, but he took it upon himself कि he will finish a draft of Talwar before he takes off to shoot Heather, which was very magnanimous of him. And he's also the co-producer of the film. Yeah, I mean, I think it's something that's been, ironically, it didn't happen for the longest time, and surprising that we never thought of it sooner. But I remember when Das Kahaniyan released, and he saw my segment in the film, I remember he had given an interview saying that I was so impressed with the film that I want to produce a film for her.
It's taken us 8 years to get there, but we're here. Yeah. Yeah. Did you meet the real life people like have you meet them? Yes, I did. I could not meet the parents. The thing was that because we had done a lot of research and we had kind of made a kind of timeline based on that research, we met several people connected with the case, whether it was the investigators, whether it was members of the family. I couldn't meet the parents because they were already incarcerated by the time we decided to make the film. And those meetings were important because if you have to present a balanced view of all sides, you need to meet all sides. Sorry, I didn't understand. Yeah, so they made a huh. They got lots of permission, Right. So do you feel so कि वहाँ के लोग थे इसलिए they got the permission to meet them? I wouldn't know because we didn't go down that road, so हमको पता नहीं कि हमको मिलती कि नहीं मिलती, but we didn't go down that road actually. I didn't say हमको हाँ नहीं मिल पाए. We didn't go down that road. It was not like we weren't allowed to meet. Yeah. हाँ जी. Yeah. जी. Again, everything is a double-edged sword with this film, like media's role. अगर film हमारे theatrical release से काफ़ी देर पहले एक अलग audience के लिए खुलती है. अगर बुरे reviews आए तो मर गए और अगर अच्छे reviews आए तो it will be great for the film, I hope. English, yeah. All our international prints actually have English subtitles. I think only the Asian festivals will subtitle it in their own languages. Yeah. casting बहुत important है जी फिल्म के लिए जी और खासतौर पे नीरज का से नीरज का भी उनको कास्टिंग वाकई दिलचस्प क्योंकि जो ऊपर डिस्टर्बिंग कैरेक्टर है वो देख रहा है जी. नीरज सर की कास्टिंग एक्चुअली आई थिंक हमारा स्केड्यूल लॉक हो गया था क्योंकि इरफान खान साहब जो हैं ही वाज ऑन द फिल्म इवन बिफोर वी हैड अ प्रोड्यूसर एंड वी न्यू दैट उनकी डेट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बिकॉज ही वाज वेरी वेरी कमिटेड. सो वी न्यू कि हमको इसी दौरान में फ़िल्म बनानी है एंड आई थिंक वी हैड 1.5 महीने का प्रेप टू पुट द फिल्म टुगेदर. एंड बिकॉज द फादर्स कैरेक्टर इज़ सो ट्रिकी, I think he was almost the second last person to be cast on the film because मतलब समझ में नहीं आ रहा था which way to go. But he came on I think 7 days before we went on floor. Luckily उनका काम थोड़ी देर बाद आया. But he's a very internal actor. वो आपसे सवाल पूछेंगे, वो आपसे सारी information लेंगे, आप बैठ के उनको I would explain for hours to him about the case, about the character. And क्योंकि हम film को linear format में नहीं shoot करते, we shoot sequences back and forth. And so the character is jumping timelines even emotionally. तो I needed to know my material backwards. कि इस वक्त ऐसे हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, ये scene यहाँ आता है जब इससे पहले ये हुआ था. He would take all that information, completely internalize it, and then he would ask for some time. Give me 10 minutes, and he would go away into one corner of the set. The entire set would be silent. मतलब स्कूल में pin drop silence बोलते हैं ना, तो हमारा set classroom की तरह बिल्कुल खामोश हो जाता था. And then he would come, and it's very rare that I've asked for another take from him. Very very rare. Yeah. एक्चुअली कहते हैं कि जब किसी चीज़ का वक्त होता है ना तो फिर सब कुछ अपने आप ही जुड़ता जाता है. ऑल एक्टर्स ऑन दिस फिल्म आर द फर्स्ट पीपल दैट वी वेंट टू एंड दे ऑल सेड यस. वी डिडंट हैव टू गो फॉर अ सेकेंड ऑप्शन, थैंकफुली.
जी जी। जी नहीं, मैं वेरी क्लियरली अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो इस फिल्म में हमने इन्वेस्टिगेशंस को दिखाया है। ओके, तो इस फिल्म में 3 इन्वेस्टिगेशंस हुए थे। पहला पुलिस ने किया था, दूसरा सीबीआई की पहली टीम ने किया था, तीसरा सीबीआई की दूसरी टीम ने किया था। 2 पहलू हैं, क्योंकि जो पुलिस की थियोरी है और जो सीबीआई की दूसरी टीम की थियोरी है वो ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें पेरेंट्स को मर्डरर बोला जाता है। और जो पहली सीबीआई की टीम थी उनकी थियोरी अलग थी। उन्होंने कहा था कि पेरेंट्स नहीं है, कंपाउंडर है और नौकर है जिन्होंने ये किया है। तो हमारे 2 वर्जन्स जो हैं वो एक सीबीआई 1 कह लीजिए और एक सीबीआई 2 कह लीजिए, ये उनके वर्जन्स है। ये ना पेरेंट्स के वर्जन्स है, ना पुलिस की वर्जन है, ना मेरी वर्जन है, ना विशाल जी की वर्जन है। ये दोनों इन्वेस्टिगेशंस जो हुई हैं ये उनकी वर्जन्स हैं। जी जी जिसके बारे में पूरा जी, ये कास्टिंग के अलावा एक वैसे एक कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है कि आपको वो किरदार या उस बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिखानी। तो क्या कुछ एक्सरसाइज रही इसके? अगर मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं तो मैं मेरी फिल्म का बहुत बड़ा पहलू रिवील करूंगी यहाँ पे, सो नहीं देना चाहूँगी कि आप फिल्म देखें प्लीज़। लेकिन एक इमोशनल कनेक्ट जो दिख रहा है आपकी बातों से भी वो जी नजर आ रहा है। जी क्या ऐसा रहा? जी हाँ, क्योंकि एक छोटी सी लड़की को जब हमको उसके साथ मर्डर सीक्वेंसेस शूट करने हैं, obviously you use a lot of special effects and prosthetics and things like that, but it's still violent और हमको दोनों तरफ से वो शूट करना है। इट्स नॉट ओनली कि एक बार कर लिया और ख़त्म हो गया, हमको 2 बार करना है, 2 अलग अलग मर्डरर्स के साथ। वो मुश्किल था। और आई थिंक उसी दौरान पापा विजिटेड माई सेट व्हेन वी वर इन दिल्ली एंड उन्होंने कुछ लाइंस उसी वक्त सेट पे बोली। अनीश गिव मी माय फोन, आई थिंक इट्स रिटन इन देयर। 1 मिनट पढ़ के बताऊंगी। ये उन्होंने लिखी थी सेट पर। बस यही फ़र्क है हकीकत के होने और दिखाने में। बस यही फ़र्क है हकीकत के होने और दिखाने में। उन्हें डर था कि वो बच ना जाए, आपको डर है उसे लग ना जाए। These are his lines. Okay. 1 मिनट। बस यही फ़र्क है हकीकत के होने और दिखाने में। उन्हें डर था कि वो बच ना जाए, आपको डर है कि उसे लग ना जाए। जी थोड़ा नहीं, पूरा ही बताया गया है। जी जी एक्चुअली इट्स वेरी फ़नी कि आपने ये पूछा, क्योंकि इरफान सर के साथ मेरा पहला दिन था शूट का और मैं उनको शॉर्ट ब्रेक डाउन बता रही थी, तो उन्होंने कहा अरे यार मेघना ये कहीं क्राइम पेट्रोल ना बन जाए यार। सो एंड आई थिंक उसके बाद उन्होंने दोबारा ऐसा कुछ नहीं कहा। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। डन ओके या ओके लास्ट क्वेश्चन। जी जी but it should be seen to be done. Right. Do you subscribe to this theory, or do you
think that just doing justice is enough? I think there's a very fine line between doing justice and that deed being seen, because when you see something, it's a very subjective space to be in. What you may see as justice being done, I may not. But I think justice is truly done when it resonates with the majority of the people, with the majority of the society in which that justice is being given out, that yes, it has been done. It needs to resonate with the people, and then it has been served. जी जी ओह, इसका सल्यूशन आसान नहीं है, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, और डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन and the opportunity to be heard is very important, and I think we need to have space for a democratic dialogue where all parties can sit and talk. In a democracy आप अपने फैसले किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते, वो नहीं होना चाहिए. That's a dictatorship, that's not a democracy. By chance, anytime जब कोई hit and run किसी पहुंचते हुए तो कहीं पर ख्याल आया कि आप क्या पूछ रहे हैं? hit and run केस जी जी अभी तक तो नहीं, बट आई थिंक ये फिल्म मेरे लिए वॉज द फर्स्ट टाइम इन अ रियल स्पेस. मे बी देयर विल बी मोर आफ्टर दिस. डन.